Your fellowship will start from the onset of the application form. German Aerospace Center. It's like a NASA or ISRO. I already visited Europe, so I think Germany is the perfect place. First 2 year आपको 70,000 मिलता है. Third year आपके start होते ही आपकी and I have successfully published 15 papers. I know it's having impact factor of 10.7 and taking admission in IIT is also a competitive exam on challenging in India. Overall cost for the implementation? Going to apply a patent on this. So सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 2 में। एंड ये जो रिसर्चर व्लॉग है काफ़ी आप लोगों को अमेजिंग लग रहा है। सो आज हमारे साथ जो हमारा गेस्ट है, सो सी इज़ नीति चौधरी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट PMRF फेलोशिप। सो आज हम लोग नीति से डिस्कस करेंगे। सी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड सी इज़ डूइंग अमेजिंग। तो आज उनका इंट्रोडक्शन हम उनसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं। सो नीति प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ। okay, thank you, Harsh. Good evening, everyone. This is Niti Chaudhary, PMR Fellow, and I'm pursuing my PhD, second year from IIT Roorkee, Uttarakhand. And basically, I belong to Haryana. And if I'm talking about my supervisors, I have two supervisors. Naming Professor Ramesh Chandra and Professor Pradeep Kumar Mazi. I'm blessed to be work with them. If I'm talking about my research publications or academic performance, and in coursework, PhD coursework, I have secured 9.8 CGPA in my PhD coursework. And if I'm talking about publications, I have published 15 or 16 papers in reputed journals, and out of them 5 are my first author and rest of them are the co-author. So first one paper is published in reputed journals, Journal Materials Chemistry A of impact factor of 10.7, nanoscale, RSE, and sustainability energy and fuels, and reputed journals of elsewhere of that is carbohydrate polymer. And thank you so much. सो गाइज आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा इनका ब्रीफ इंट्रो। एंड 10.7 गाइज यार बहुत ही अमेजिंग बात है। एंड बहुत लोग यार 5 इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश करते हैं तो ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ 10.7 इम्पैक्ट फैक्टर वाली है। तो आज जो आपको भी PMRF के बारे में जो भी गाइडेंस मिलेगा एकदम परफेक्ट मिलने वाला है। सो बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हम लोग कुछ Q&S करेंगे नीति के साथ। क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा कि क्या है PMRF। सो पहले PMRF से जानने से पहले हम कुछ ये पूछना चाहेंगे नीति से। नीति, कैन यू शेयर अ ब्रीफ ओवरव्यू of your current research and its real world application? Actually, my research focused on the waste materials like biomass materials used in energy storage applications, particularly in supercapacitors. So basically, we extract cellulose or any other lignin materials from the plant waste materials like a sugarcane, bagasse, agriculture waste, wheat straw, rice husk, etc. And then used by sputting mechanism, by sputting process, use the metal oxide of titanium dioxide, metal oxide deposit and make a composites and make it sustainable or environmental friendly materials and use in energy storage application like a supercapacitors. So this is my basic research topic statement. Okay, nice. What will be the overall cost for the implementation? Cost analysis is going on, but definitely it is less or cost effective or environmental friendly comparable to the conventional materials already used in the market, which is already used in market, which are harmful to the environment and human beings also, and also rich in high in cost. So comparable to them, it is cost effective. Now my plan is going to apply a patent on this. पेटेंट के बारे में बात हो रहा है गाइस। एक तो इतना पब्लिकेशंस ऊपर से अब हम लोग पेटेंट के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं। पेटेंट भी अपने आप में ही एक ऑसम चीज़ है। सो अच्छा लगा होगा गाइस ये पहला क्वेश्चन एंड दैट वाज अ वेरी ग्रेट आंसर। थैंक यू फॉर दैट लवली आंसर। PMRF का फेलोशिप स्टार्ट हो गया, तो चलो हम लोग PMRF के ऊपर में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ PMRF एंड हाउ दे आर गेटिंग, मीन्स PMRF का फंड आपको कैसे मिलता है। सो लेट्स डिस्कस विद नीति। नीति विल से एवरीथिंग अबाउट इट, PMRF एडमिशन प्रोसेस। Okay, PMRF is the Prime Minister Research Fellowship, which is a prestigious fellowship. So, as we all know that taking admission in IIT is also a competitive exam on challenging in India. For that, the students have to
crack IIT or GATE exam, etc. Then from that we select the toppers or cream for IITs. But next, moving forward, if we talk about PMRF, then among those toppers, we have to select the toppers among the toppers. So first procedure is that you have to make a strong profile or research proposal, and then you have a strong experience in a reputed institute like a CSI or IIT or any kind of NIT in internship or projects, and you have a good academic performance also apart from the innovative or research excellence. So there is a somewhat different parameters are already decided. So you have to good in everyone. So it's around 800 marks PMRF selection procedure. That is 20 marks is for your research proposal, 20 marks is for your academic performance up to masters or up to BTech, 10 marks is for how much you secured in PhD. So my PhD coursework marks was 9.8. My publication is 2. So that it also At that time, at that time Okay. in masters also. So सबका अपना अपना प्रोसीजर होता है और सबको आप कैलकुलेट करके आपको 80 अबव करना ही पड़ता है. सो दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंड रिगरस परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टार्टिंग में पहले सुपरवाइजर डिसाइड करता है कि आप अगर 4-5 आप कलीग्स हैं तो किसको वो कैपेबल समझता है कि आगे तक जाएगा. तो सुपरवाइजर फर्स्ट डिसाइड कि हु विल फिल दिस फॉर्म. Then department will decide who will nominate who is the desirable candidate. So then the department decide, then there is an interview process occurs on the basis of your merit list, presentation occur, then institute will decide. So there is a step by step procedure, supervisor, department, institute. Then after all these applications, and then there is a national panel team decide, national committee center of the PMRF. They will decide then who they will give this fellowship. So the best part is that if you luckily you get this fellowship, then your fellowship will start from the onset of the application form. Oh my God. लाइक माई जैसे मैंने जुलाई में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की थी और रिजल्ट अक्टूबर में आया था, 24 अक्टूबर 24, दैट डे वाज दशहरा. तो मुझे अब अपनी फेलोशिप जुलाई से मिलनी स्टार्ट हो गई थी. जुलाई से मिलना स्टार्ट हो जो गया? मुझे स्टाइफन ऑलरेडी 37 मिल रहा था, आई गेव बैक टू द इंस्टीट्यूट MHRD फेलोशिप. देन इंस्टीट्यूट ने PMRF ने हमें क्या किया, वो 70,000 जुलाई के ऑनवर्ड से हमें देना शुरू कर दिया था. तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट इफ़ यू गेट दिस फेलोशिप. फर्स्ट 2 ईयर आपको 70,000 मिलता है. थर्ड ईयर आपके स्टार्ट होते ही आपको 75 मिलता है और फोर्थ और फिफ्थ ईयर आपको 80,000 पर मंथ मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस फेलोशिप आपको एक कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलता है. किसी किसी इंस्टीट्यूट में MHRD में 10,000 पर एनम होता है, बट हम PMRF स्कॉलर्स का क्या होता है, हमें 2 लाख पर एनम मिलता है, जिसमें हम अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ अपनी यूज़ कर सकते हैं. अभी मैंने 1,30,000 लैपटॉप परचेज़ किया है और हार्ड डिस्क वगैरह जो भी हम रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो हम परचेज़ कर सकते हैं. तो ये बेस्ट पार्ट है PMRF की, जो हमें बाकी रिसर्च में नहीं मिलती है. बट फॉर दैट टू गेट दिस प्रेस्टिजियस फेलोशिप यू शुड बी फोकस्ड, डेडिकेटेड, यू हैव स्ट्रॉन्ग excellent performance or excellent background of and research also. Just want to ask you one thing. हमने जाना है कि आपने काफ़ी इंटरनेशनल ट्रिप किया है. सो ये इंटरनेशनल ट्रिप किस तरीका से हुआ है? मतलब ये आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ने काफ़ी हेल्प किया है या फिर आपका खुद का पैसा लगा है? फर्स्ट थैंकफुल टू IIT रुड़की. ये अपॉर्चुनिटी हर जगह नहीं आती है. IIT रुड़की और प्रोफेसर्स के हमारे कोलेबोरेशंस थे, तभी वो लोग हमें सेलेक्ट करते हैं. PMRF ऑल्सो बिल्ड माई CV ओबियसली. तो PMRF की वजह से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया इंटर्नशिप के लिए, और मेरा वहाँ पे पोलैंड में था सिलेशन यूनिवर्सिटी में, और एक टॉक थी जर्मनी में DLR जर्मन एरोस्पेस सेंटर. इट्स लाइक अ नासा और इसरो, इट्स सिमिलर टू दैट. जर्मनी DLR जर्मन एरोस्पेस सेंटर. तो वहाँ पे एक टॉक भी थी, और जो मेरा इंटर्नशिप था, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट मुझे 1 रुपया भी मेरा नहीं गया. Oh my सब God. अकोमोडेशन और सब प्रोजेक्ट से गया या फिर PMRF से गया. तो सब एयर फेयर, अकोमोडेशंस, वहाँ के एक्सपेंसेस वो मुझे डेली बेसिस पे पेमेंट करते थे, जो मैं वहीं पे यूज़ करती थी, यूरोस में होती थी. तो कभी मतलब ड्रीम हुआ करता था फॉरेन जाने का, तो ये PMRF ने कई हद तक आपका पूरा कर दिया. PMRF और थैंक्स टू IIT हाँ, रुड़की. ओबियसली PMRF एंड IIT रुड़की और सुपरवाइजर्स की वजह से भी, उनके कोलैबोरेशंस कैसे हैं. मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट PhD में आपके लिंक कैसे आपके सुपरवाइजर से, अगर आपके अच्छे बॉन्ड हैं तो दे विल सपोर्ट यू. और सुपरवाइजर्स ऑलवेज सपोर्ट देयर चाइल्ड ना. Yes, तो IIT इंस्टीट्यूट हेल्प करता है, तो PMRF इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. सुपरवाइजर IIT PMRF दे आर.
फाइनेंशियली तो हेल्प किया ही है, और अभी मतलब हमें जानने को आया कि पीएमआरएफ इनहैंस पीएमआरएफ अभी आने वाला है, सो दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1 लाख, सो इट्स जस्ट अ न्यूज़, वी डोंट नो प्रॉपरली हाउ मच दे विल गिव। सो पीएमआरएफ आपका फाइनेंशियली तो हेल्प किया हूँ, एकेडमिक्स में किस तरीके से हेल्प करा? एक्चुअली पीएमआरएफ इवैल्यूएशन हमारे हर साल होते हैं, तो हर साल रिगरस इवैल्यूएशन होता है। मेरा आईएससी बेंगलोर लेता है, पैनल्स होते हैं 4-5 लोगों के, 4-5 एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स बैठे होते हैं बहुत रेप्यूटेड। वो हमारे पैनल वो लेते हैं, वो हमें आइडियाज़ भी देते हैं कि आपको कैसे रिसर्च करना है, कैसे नहीं करना है, क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे बेसिक से लेकर हमारे एंड तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो उनकी वजह से भी पीएमआरएफ रिव्यू होने वाला है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और इन सब के अपार्ट में हमें जो कोलैबोरेशंस होते हैं इंटरनेशनल, उनके साथ लिंक अच्छे होते हैं, एक्सपर्टीज़ के साथ, साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन होता है पीएमआरएफ की वजह से, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की। तो फाइनेंशियल के अलावा भी हमें सब चीज़ों में हमारा जो करियर और हमारा पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। मोस्ट हमारा स्कोर अच्छा ही होना चाहिए। पीएमआरएफ ऐसा नहीं कि आपको फेलोशिप देता ही रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा नहीं कर रहे हैं या सिर्फ आप फेलोशिप ले रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा समझदार है हम लोगों की, तो वो इस चीज़ पे ध्यान रखती है कि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा एक वार्निंग हमें देगी फर्स्ट रिव्यू में। सेकंड टाइम भी अगर हम रिपीट मिस्टेक कर रहे हैं या इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो फेलोशिप बंद भी कर देते हैं। बंद भी कर देते हैं? अच्छा, बहुत ये लोगों की हुई भी है। अच्छा, बहुत लोगों की फेलोशिप बंद भी हुई है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि मैंने सुना है कि पीएमआरएफ में क्या होता है कि हमें कहीं एकेडमिक्स में जाकर के भी पढ़ाना भी होता है, तो ये आपके साथ है क्या? हाँ जी, पीएमआरएफ में अपार्ट फ्रॉम हमारी रिसर्च क्या चल रही है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो हमें एक टीए टीचिंग असिस्टेंटशिप कंप्लीट करनी होती है 50 आवर्स की पर एनम। तो हम हर वीक में, बेसिक बोला जाता है कि हर वीक में 1 घंटा हम पढ़ा दे, वीक मंथ में 4 घंटे हो जाए, ऐसे करके 50 आवर्स हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाके हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं क्या करती हूँ, स्कूल में या एक बार मैंने कॉलेज में, एक बार स्कूल में एक कोर्स पकड़ लेते हैं, हम उसको कंप्लीट करवाते हैं, वो हमें 50 आवर्स का सर्टिफिकेट दे देते हैं, जो हम पीएमआरएफ का जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हम अपलोड करते रहते हैं। हमारी अचीवमेंट्स क्या हो रही हैं, हमारा ये सब टीचिंग असिस्टेंटशिप के सर्टिफिकेट्स हम स्कूल कॉलेज से लेते हैं और वो हम वहाँ पे देते हैं, जो कि हम लोगों के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करवा रहा है पीएमआरएफ ना, कि दूसरों को भी गाइडेंस काउंसलिंग मिल रही है और उन्हें भी एक्सपर्टीज़ मिल रही है कि आईआईटी से उनके स्कूल में कोई पढ़ाने जा रहा है, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अगर वो 12th में 11th में है तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि हम रिसर्च के टूवर्ड्स भी मूव कर सकते हैं और हमें इतना अच्छा फेलोशिप मिल सकता है, आईआईटी मिल सकता है। कहते हैं कि आप जूनियर्स को कैसे गाइड करोगे, जूनियर्स को कैसे बताओगे, एंड प्रपोजल कैसे बनाते हैं पीएमआरएफ का, प्लीज? रिसर्च प्रपोजल के 25 मार्क्स होते हैं, तो आपको बेसिकली आपके रिसर्च प्रपोजल में इनोवेटिव वर्क डालना है, नोवेल्टी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए जो आज तक नहीं हुआ है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो सोसाइटल इम्पैक्ट होना चाहिए कि आपके काम से आपकी सोसाइटी पे, नेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। ओबियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखाना है। तो ये सब चीज़ें कैसे, जो करंट में प्रॉब्लम्स चल रही है, आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आपका जितना स्ट्रॉन्ग प्रपोजल होगा, आपके चांसेस उतने ही अच्छे होंगे। तो सेकेंडली, जब आप एडमिशन लेते हैं, पीएमआरएफ हम 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, लेटरल और डायरेक्ट। डायरेक्ट एंट्री में अगर आपका मास्टर्स या बैचलर बहुत आईआईटी से है या एनआईटी से है, तो आप उसमें डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं अगर आपके 8.5 सीजीपीए अबव है। मैंने लेटरल में किया था। लेटरल में आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल पे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तब तक 6 महीने होते हैं आपके पास। 6 महीने में आपको 4 कोर्स वर्क कंप्लीट करने होते हैं, ये मैंडेटरी है, आपको 4 ही कोर्स वर्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। 8.5 उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट आपको 8.5 पे नहीं रुकना है। मेरे 9.8 थे, तो आप जितना कोशिश करो अबाउ 9 लाने की ही कोशिश करो, क्योंकि आपको नहीं पता ना आपका कॉम्पिटिटर आपके साथ कौन है जब आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको कोर्स वर्क में अच्छा करना है, 20 मार्क्स उसके होते हैं। आपके मास्टर्स में जो हो गया अच्छा था तो वो भी सही है, नहीं था तो भी आप ओवरकम कर सकते हैं। और आपका रिकमेंडेशन 10 मार्क्स रिकमेंडेशन के होते हैं कि आपका प्रोफेसर आपके रिकमेंडेशन कि आपको नॉमिनेशन करवाता है, किससे करवाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका प्रपोजल, आपका एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ आपने काम किया है, 1 महीना भी 2 महीना भी आपने कहीं अच्छी जगह काम किया तो वो भी कंसिडर होता है। तो प्रपोजल पे ज़्यादा फोकस करिए, अपना एक्सपीरियंस पे करिए, और जो आपके हाथ में वो है अभी कोर्स वर्क और आपका प्रपोजल, तो अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन करके अच्छे से करिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ये हम लोग जूनियर्स को आप क्या वही बोलना तरह से। चाहोगे, बेस्ट विशेस जूनियर्स को? Okay, be optimistic and stay focused, dedicated, बी हैप्पी। अगर आप जो सोचेंगे एग्जैक्टली वही ही होगा आपके साथ। आप प्रपोजल, आप पीएमआरएफ का सोच रहे अच्छा होगा, अच्छा ही होगा,
तो आप अपने सिर्फ रिसर्च पे फोकस करिए। अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे हैं, डोंट वरी, स्टार्ट नेक्स्ट डे अपना स्टार्ट करिए उसी एक्साइटमेंट के साथ। एक दिन का और एक मंथ का और एक साल का पीएचडी नहीं है, तो ट्राई करिए अपनी 4 साल तक ही कंप्लीट हो जाती है वैसे। तो एक्सपेरिमेंट अगर फेल होते हैं तो दोबारा रिपीट करिए। सो नीति एक चीज़ जानना है, जैसे कि आपने इतना पब्लिकेशंस वगैरह करा, सो इसके लिए कितना हार्ड वर्क था? अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो आप लोग या कोई भी बिलीव नहीं करेगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं स्टार्टिंग के मुझे पीएमएफ चाहिए ही चाहिए था, तो स्टार्टिंग के 3rd मंथ में मैं अपना रिव्यू पेपर, क्योंकि उस टाइम एक्सपेरिमेंटल का हमें ना डिसाइड होता है कि हमें एक्सपेरिमेंटल पेपर लिखना है कि किस पे काम करना है, तो मेरे हाथ में सिर्फ रिव्यू पेपर था। मैंने अपने सुपरवाइज़र को बताया कि मैं रिव्यू लिख लेती हूँ, एक पेपर कंसिडर हो जाएगा। तो 3rd मंथ में मार्च एंड तक मैं अपना पेपर लिख चुकी थी, और अप्रैल में मैं कम्युनिकेट कर चुकी थी। और जब तक ये सब हो रहा था मेरा पेपर अंडर रिव्यू जा चुका था एडिटर के बाद। तो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग के 6-7 महीने, अभी भी एक्चुअली स्टार्टिंग के 6-7 महीने मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करती थी, लैब में भी काम करती थी। 4 बजे तक पढ़ाई, ओह माय गॉड। सीरियसली, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये बातें किसी को नहीं बताती हूँ, आई बिलीव इन नज़र एंड ऑल, बट मैं लैब में भी काम करती थी और मैं सुबह तक काम करती थी। मैं बहुत कम सोती हूँ, 4-5 घंटे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, 5 से 6 मतलब घंटे आपको सफिशिएंट। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा, और वो आपका दिखेगा भी। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो नहीं दिख रहा, आज नहीं कल वो तो दिखेगी भी मेहनत मेहनत। कभी भी वेस्ट नहीं जाता है गाइस, आपको मेहनत करना है, स्टार्ट हो जाओ। एंड देखो यार, वही मैं बताता हूँ, मेहनत आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। सो जैसे हमने नीति से आज इंस्पिरेशंस लिया, तो नीति ने भी काफ़ी हार्ड वर्क करा, सो अचीव किया। उसके बाद ये अपना लाइफ जी रही है, बहुत ही अच्छा से जी रही है, हम लोग देखते अभी हैं। भी कंटिन्यू मैं मेहनत कर रही हूँ। कल रात भी मैं सुबह 6 बजे तक मैंने काम किया। फिर अगले दिन प्रोफेसर को नहीं पता हम सुबह 6 बजे तक काम करते हैं, उन्हें हमें लैब में 10 बजे दिखना ही होता है, तो मैं 10 बजे तक लैब भी जाना होता है। सो जो भी मैं सुना हूँ ना, आईआईटीएंस के जो नाइट लाइफ होते हैं ना, काफ़ी स्ट्रगल वाले रहते हैं, तो आज पता भी चल गया यार। सो जो आईआईटीएंस की नाइट लाइफ है ना गाइस, काफ़ी स्ट्रगल वाली रहती है। सो नीति ने आज बता दिया, प्रूव कर दिया, एंड आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करो। सो अभी हम लोग नीति के साथ कुछ रैपिड फायर खेलते हैं गाइस, एंड चलो देखते हैं हम नीति इसका कैसे कैसे आंसर बताती है। सो नीति रेडी हो आप? या आई एम रेडी। सो रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन ये है, फेवरेट केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट यू हैव एवर डन? ओके, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो सोडियम की जो हमारे पेलेट्स आती थी, मैं उन्हें पानी में डालती थी आग लगने के लिए। अब पता चलता है कि वो हाइड्रोजन रिलीज होती थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी। सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। एंड वन रिसर्च टूल और सॉफ्टवेयर यू कांट लिव विदाउट? इन पीएचडी हमारे सारे ही सॉफ्टवेयर फेवरेट होते हैं, किसके बिना काम नहीं चलता। वैसे मैं ओरिजन और नैनोस्कोप एनालिसिस और एक्सआरडी, ये सबके लिए ये सब करने पड़ते। ओरिजन इज मैंडेटरी, और ओरिजन इज व्हाट यू कॉल्ड यूनिवर्सल टूल फॉर योर पीएचडी। ओरिजिन आई गेस ग्राफ वगैरह के लिए use या करते हैं ना? ग्राफिकल 3D और So- 2D वी कैन प्लॉट। 3D and 2D graphic and plot. So dream research destination? As we know, I already visited Europe, so I think Germany is the perfect place. They are really Germany. Okay. जर्मनी। सो इंडिया में आके काम करना है या फिर जर्मनी में ही बसना है? Obviously, India. India is. I'm not saying that India is. We can't compare any country with anyone, but India is best because of the environmental तो socialization. आप हम- बस जाकर के एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? एग्जैक्टली हमें यहाँ प्रोफेसर से मीटिंग करने के लिए इतना नहीं सोचना पड़ता। एक बार बोलते सुपरवाइजर विल एग्री, वहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मैं वहाँ पे 3-4 महीने रही, तो हम मुझे एग्जैक्टली मेल करने पड़ते थे कि व्हेन वी विल यू गेट टाइम प्लीज लेट मी नो, ऐसे करके। तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस जर्मनी में करना चाहते हो फिर इंडिया में आकर के? हाँ। The next question is a book or research paper that changed your perspective? Okay, I like Wings of Fire of APJ Kalam, इस बायोग्राफी। सो मैं सबको सजेस्ट करूँगी आप सब वो सब पढ़िए और उनकी बायोग्राफी से कुछ सीखिए अपने लाइफ में। Nice one. And your go-to stress buster? Okay, it is quite funny. I love shopping. Whenever I feel sad or bad, I do shopping, and sometimes I read novels also. But most of the time, I do shopping. Guys, अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो यार शॉपिंग करते रहना चाहिए, है ना? Exactly. Researcher, what would you be doing? Aerospace scientist. As I told, APJ Kalam is my idol. So aerospace scientist. Nice one. And one thing about chemistry that still amazes you? एक चीज केमिस्ट्री के बारे में जो आपको अमेज करता है। केमिस्ट्री Bond breaking or bond formation, obviously in chemistry or in real life. नाइस। टी और कॉफी? I would prefer tea, and I love milk because I belong to Haryana. And describe your research in 3 words.
sustainable energy devices. If you had to explain your research to 5-year-old boy or girl, how would you do in one sentence? Okay, I can make a super capacitor जो उनकी टॉयज़ को, जो अभी एरोप्लेन वगैरह यूज़ करते हैं, उनको काफ़ी लंबे टाइम तक और काफ़ी स्पीड में चला सकते हैं एकदम से. Guys, it was amazing interview and it was bravo. So बहुत ही शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया एंड हमारे ऑडियंस को ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है. सो थैंक यू सो मच. सो दैट वाज द एपिसोड 2 एंड ये थी गाइस रिसर्चर व्लॉग में आपको साइंटिस्ट व्लॉग, रिसर्चर की लाइफ, इस तरीके की एपिसोड आपको मिलती रहेगी. तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहोगे कुछ? हाँ, प्लीज़ फॉलो हर्ष ठाकुर एंड गौरव रंजन रील्स ऑफ लर्निंग IIT रुड़की ऑब्वियसली, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस. आप सब लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको नॉलेज का भी एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली. इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सो मच.